हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल से यस टू लिटरेचर। गाइस, आज का जो हमारा वीडियो होने वाला है वो होने वाला है कि जो नेक्स्ट यूजीसी नेट का जो हमारा एग्ज़ाम होने वाला है, जो जून अटेम्प्ट होने वाला है, उसको कैसे टारगेट करें। Since you know guys, I got so many message from all of you that how to prepare paper 1 because so many of very confusing when it comes to paper 1. Since you know guys, because the paper 2 is our subject, so it is very common to us to prepare paper 2, but so many students confused when it comes to paper 1 since it is not our subject paper, and we have so much not very much knowledge about this, so we are very confusing. Even when I prepare for UGC NET, guys, मैं खुद बहुत confusing थी, and I know very well that till the last date when I go to give my exam, I still confused at that day also, that even whatever I study, is it enough, or that I will able to get at least I able to get qualify my paper 1, because since I also very confused, I don't have any idea, and I randomly go through so many YouTube channels, so many links, so many channels, so that I can prepare somehow and qualify my paper 1, because paper 2 I take actually guidance also, I take coaching, and so I have a very good knowledge about paper 2. And since guys, my I'm very passionate about my literature paper. I'm very good in English. I love my literature actually. English is my core subject, and even from my bottom of my heart, I love English. So though so many new topics I knew when I study UGC NET, when I prepare for UGC NET, but somehow I became habitual. I somehow cracked, somehow prepared all topics, though some of them are very new for me, and some of them, since you also preparing for UGC NET, so you all aware of that literary theory, cultural studies, literary criticism, and all are these are the subtopics that we somehow trying to escape, because I know very well, I go through all these, and from my experience I can say that these are the topics we find very difficult, and somehow we trying to find guidance for these topics, because first of all we don't have any knowledge of all that topics, and if we have knowledge, these are very tough to learn. So guys, I know these are the topics that you face difficulties, so trust me guys, from today onwards मैं कोशिश करूँगी समहाउ कि दीज आर द टॉपिक, बिकॉज समहाउ गाइज मुझे ये टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आए हैं, और बिकॉज दीज आर द टॉपिक्स, बिकॉज समहाउ ये अगर टफ हैं तो ये इसका सबसे बड़ा बेनिफिट अगर मैं कहूँगी तो ये होगा कि लिमिटेड है, ठीक है, और हमें कुछ ही राइटर्स, कुछ ही थियरीज थे उनको क्लियर कंप्लीट करना है, और उनसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो गाइस एटलीस्ट हमें ये पता हो, जबकि है ना हमें कुछ लिमिटेड सिलेबस कंप्लीट करना है, लिमिटेड थियरीज को कवर करना है, और उनसे भी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्योंकि कई बार क्या होता है, अगर इनडायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो हमें कितनी भी नॉलेज हो गाइस, हम फिर भी कंफ्यूज होते हैं, बिकॉज द स्टेटमेंट बेस्ड जो क्वेश्चन आते हैं उन पे कि फर्स्ट वन इज ट्रू, सेकेंड वन ट्रू, और बोथ आर ट्रू, दीज आर द क्वेश्चन वी feel we find difficulty when we wanted to solve these questions, and even in exam we find very stressed when we solve that question. First of all, because first of all, when we read that questions, so we took time to read or to interpret the question, that what the question is truly wanted to say, and in the end, after taking a time, we reach on a particular answer. So in that way, I know guys, you also find difficulty. So literary theory, cultural studies, and literary criticism, trust me guys, मैं आज से इनकी सीरीज पे
वीडियोस बनाना शुरू करूँगी तो आप 1 बाय 1 पार्ट 1 में इनको पार्ट्स में अपलोड करूँगी एक्चुअली, बिकॉज यू नो लिटरेरी थ्योरी एंड ऑल ये टॉपिक्स ऐसे हैं कि एक तो अगर हम कंटिन्यूस में एक बार में अगर मैं इनको सारों को बता दूंगी तो आपको समझ नहीं आएंगे, आप बहुत कंफ्यूज हो जाओगे। और दूसरी बात है 1 बाय 1 अगर आप पढ़ोगे तो धीरे धीरे आपके लिए इसमें इंटरेस्ट बिल्टअप होगा, आपको इंटरेस्ट आना शुरू होगा और आपके लिए लर्न करना भी इजी होगा। आज एक थ्योरीज कर लिया, कल एक थ्योरीज कर लिया, या फिर 2-3 थ्योरीज आज कर लिए, फिर 2-3 कल कर लिए, फिर अगेन उन्हें रिवाइज कर लिया, ठीक है। और उसके बाद गाइस उससे रिलेटेड किस तरह के क्वेश्चन बनते हैं, बिकॉज चलो एक बार हमने जो लर्न कर लिया, हमने समझ लिया, वो एक अलग चीज़ है, बट उससे क्वेश्चंस किस तरह के बनते हैं, मेन तो हमें कोई क्वेश्चंस कोई सॉल्व करना है एग्जाम में, हमारा मेन सॉल्व पर्पस तो यही होता है। तो किस तरह के क्वेश्चन बनते हैं, प्रीवियस किस तरह के क्वेश्चन बन रहे हैं, मैं उस तरह के क्वेश्चंस पे ज़्यादा फोकस करूँगी ताकि आपको इसकी अंडरस्टैंडिंग हो जाए अच्छे से कि प्रीवियस एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आए, और अगर अपकमिंग एग्जाम या फिर जून अटेम्प्ट की बात करें उसमें अगर इस तरह के एग्जाम्स आए तो आपको उन्हें किस तरह क्लियर करना है, ठीक है। ये तो बात हुई पेपर 2 की। अब अगर मैं पेपर 1 की बात करूँ गाइज, तो जनरली बच्चों को बहुत डिफिकल्टी होती है सब तरह के, क्योंकि 10 हमारे सब्जेक्ट्स उसमें, और सारे ही ऐसे सब्जेक्ट थे जो जनरली हमने नहीं पढ़े होते हैं। कुछ बच्चों ने अगर हो सके तो टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ लिया होगा, या फिर ना जैसे डीआई है, मैथ्स जिनकी अच्छी होती है, डीआई रीजनिंग, वो सब बच्चे इजीली कवर कर लेते हैं। बट सिंस गाइस जैसे मेरी मैथ्स बहुत अच्छी नहीं थी तो मुझे भी खुद डिफ़िकल्टी हुई बहुत डीआई वगैरह को करने में। तो सबसे अच्छा अगर मैं कहूँ डीआई को सॉल्व, डीआई और कॉम्प्रिहेंसिव जो पैसेज होता है उसको सॉल्व करने का और उसको टैकल करने का जो मेरा मैं कहूँगी एक आइडिया है, वो है कि आप डेली बेसिस पे एक डीआई और एक कॉम्प्रिहेंसिव पैसेज को रोज़ कीजिए। गाइस यूट्यूब पे आपको बहुत से चैनल मिल जाएंगे जो आपकी प्रैक्टिस करवाते हैं डेली, तो आप कोशिश कीजिए डेली उनसे एक सेशन लेने की, और उसको अगर आप डेली करेंगे तो आपकी एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाएगी, आपको आइडिया हो जाएगा, आपको उसको सोल्व करने के लिए आपको टाइम पता चल जाएगा आप कितने टाइम उसको सोल्व कर पा रहे हैं, ठीक है। और जैसे आईसीटी है तो कंप्यूटर से रिलेटेड है, तो आप नॉर्मली आईसीटी कंप्यूटर की जो भी नॉलेज होती है, जो भी नॉर्मल टेक्नोलॉजीज अभी चल रही हैं, जो हमारे यूजीसी नेट के एग्ज़ाम में जैसे रिसर्च वगैरह पे हम जनरली टारगेट करते हैं, तो उनसे किस तरह उन टेक्नोलॉजीज़ को हम रिसर्च में कैसे यूज़ कर सकते हैं, उस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। जैसे कंप्यूटर को या टेक्नोलॉजी को किसी भी तरीके को हम अपने यूजीसी नेट के एग्ज़ाम में या फिर आफ्टर रिसर्च पीएचडी में किस तरह उसको यूज़ कर सकते हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर बन जाते हो अगर आप, तो आप उसको किस तरह रिलेट करके स्टूडेंट्स को आप समझा पाओगे। जैसे आप पावर पॉइंट यूज़ कर रहे हैं या कोई भी प्रेजेंटेशन दे रहे हैं तो आप उसको किस तरह यूज़ करेंगे, ठीक है, उससे रिगार्डिंग आते हैं। अब बात करें इंडियन लॉजिक की, तो गाइस इंडियन लॉजिक एक ऐसा टॉपिक है जो थोड़ा सा रट्टाफिकेशन है, यू मस्ट लर्न एवरी टर्म, थोड़ी सी डिफरेंट है, नई है, डिफ़िकल्ट है, आई नो, बट अगर आप एक बार उन्हें पढ़ लेंगे ना गाइस और एक बार उन्हें अच्छे से रिवाइज करेंगे बार बार, तो समहाउ आपको वो टर्म्स थोड़ी सी आप यूज टू हो जाएंगे उसके, आपको फिर उतनी दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। और इसके अलावा है स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन। गाइस स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन अगर मैं बात करूँ तो मुझे तो बहुत मज़ा आता था उसमें, एक बार अगर आप लर्न कर लो तो मूड्स हैं उसमें, स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन में जितने भी टर्म्स हैं आपके लिए बहुत ईजी हो जाएंगे। मैं गाइस आपको सजेस्ट करूँगी नवदीप कौर मैम करके है, एक जो अनअकैडमी में पढ़ाती हैं, नव क्लासेस उनका है, और एक जैसे ना तलवीर सर हैं कॉमर्स नेट अचीवर्स, आप उनका बैच ज्वाइन कर लीजिए, वो गाइस बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, ट्रस्ट में मैंने खुद ने उनसे पढ़ के अपना पेपर 1 क्लियर किया है। और इसके अलावा अगर मैं बात करूँ बाकी जो भी टॉपिक बचे हैं जैसे रिसर्च है और कम्युनिकेशन है, इन सब के लिए भी मैंने नवदीप मैम और तलवीर सर और इसके अलावा शिव मीना करके है, उन सब के नोट्स को प्रेफर किया है, ठीक है। तो गाइस इन सब को आप पढ़ लीजिए, मैं एक बार लिंक भी शेयर कर दूंगी। और इसके अलावा मैं खुद जिससे मैंने पढ़ा है, मेरे हैंड रिटन नोट्स से जिससे मैंने पढ़ा है, मैंने बहुत शॉर्ट नोट्स बनाए हैं, और समहाउ मैंने कोशिश की है कि इम्पोर्टेंट को मैं कवर कर लूँ अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट का, व्हेन इट कम्स टू रिसर्च, कम्युनिकेशन, ठीक है, हायर एजुकेशन। गाइस हायर एजुकेशन एक ऐसा टॉपिक है, इससे बहुत क्वेश्चन बनते हैं, और मुझे पर्सनली हायर एजुकेशन अच्छा लगता था, तो मेरे हायर एजुकेशन की जो भी नोट्स है मैं आपको ज़रूर शेयर करूँगी। और फिर बचता है हमारा एनवायरनमेंट। तो गाइस एनवायरनमेंट से रिलेटेड जितने भी समिट्स हुए अभी तक, ठीक है, अर्थ समिट है या फिर रियो दे जेनेरियो समिट है,
जितने भी समिट्स होते हैं टाइम टू टाइम, दोहा समिट है, ठीक है, तो आपको उनकी नॉलेज होनी चाहिए। जितने भी एनवायरनमेंट से रिगार्डिंग जितने भी समिट्स हुए हैं, जितने भी कॉन्फ्रेंसेस हुई है, ठीक है, तो आपको उनको लर्न करना है। तो मैंने कहा जो भी जितने भी मेरे नोट्स हैं वो मैं आपको शेयर जरूर करूँगी। उसके अलावा शिव मीना सर के आपको हायर एजुकेशन और एनवायरनमेंट के लिए आप उनको पढ़िए, मैंने उन्हीं से पढ़ा है और वो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं गाइज। तो आई होप मैंने पेपर 1 के भी सारे जितने भी सब्जेक्ट्स हैं वो कवर कर लिए हैं। अगर फिर भी आपको कोई भी डाउट हो आप मुझे कमेंट में लिखिए, ठीक है। और आपको ये सेशन कैसा लगा मुझे वो भी बताइएगा। इस तरह के सेशन जब मैं लेती हूँ और आपके मुझे कमेंट्स मिलते हैं, मुझे बहुत मोटिवेशन मिलती है इस तरह के अच्छी अच्छी वीडियोस बनाने के लिए, ठीक है गाइज। तो अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए गाइज। ये सेशन मैं टेलीग्राम पे भी विद द सेम नेम जो मेरा चैनल है से यस टू लिटरेचर, वहाँ भी शेयर कर दूंगी। और जितने भी मैंने वीडियोज अब तक डाले हैं मैं वहाँ पे सारे वीडियो शेयर करती हूँ, तो आप वहाँ से ले सकते हैं। और गाइज मैं अपने बारे में बताऊँ तो मैंने अपने यूजीसी नेट का जो एग्ज़ाम है वो अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में, जो ये फेब अटेम्प्ट हुआ था उसमें फर्स्ट अटेम्प्ट में क्वालिफाई किया है विद अ वेरी गुड परसेंटाइल। तो मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से आपको जो गाइडेंस दूंगी आई होप आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी। तो ठीक है गाइज, आज का सेशन हम यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में और नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।